تلنگانہ کے معذورین کے لیے ایک خوشخبری۔ تلنگانہ حکومت نے معذورین کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے حکومت کی طرف سے معذورین کو دی جانے والی 3000 امدادی پینشن کو بڑھا کر 4016 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ احکامات میں کہا ہے کہ بڑھی ہوئی پینشن جولائی کے مہینے سے نافذ العمل ہوگی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن تنازع۔ سپریم کورٹ نے سابق ہندوستانی کپتان محمد اظہر الدین کو راحت کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) اور نلگنڈا ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن (NDCA) کے درمیان تنازع پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں جاری توہین عدالت کے نوٹس کے خلاف سابق ہندوستانی کپتان محمد اظہر الدین کی طرف سے دائر درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ گواہی اور جسٹس پرشانت کمار مشرا نے درخواست کو واپس لینے کے طور پر مسترد کرتے ہوئے سابق HCA صدر کو ہائی کورٹ کے سامنے اپنا جواب داخل کرنے کی آزادی دی۔ 24 سے 30 جولائی تک سکندرآباد اور حیدرآباد ڈویژنوں میں دیکھ بھال کے کاموں کی وجہ سے کچھ ٹرینیں منسوخ۔ سکندرآباد اور حیدرآباد ڈویژنوں میں بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال کے کاموں کی وجہ سے 24 سے 30 جولائی کے درمیان کچھ ٹرینیں خدمات کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کا رخ موڑ دیا گیا۔ جو خدمات منسوخ کی گئی ہیں ان میں کاچی گوڑا سے نظام آباد 07596 اور نظام آباد سے کاچی گوڑا 07593، ناندیڑ سے نظام آباد 07854 اور نظام آباد سے ناندیڑ 07853 شامل ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے سائبر جرائم پیشہ گروپ کا پردہ فاش کیا۔ 712 کروڑ روپے کے فراڈ کا پتہ چلا اور 9 گرفتار۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ گینگ کے ارکان نے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ملک بھر میں اب تک 712 کروڑ روپے پولیس نے ان بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا ہے جن میں 10,000 روپے کی لین دین ہوتی ہے۔ 10.50 کروڑ کا پتہ چلا۔ ممبئی، لکھنؤ، گجرات اور حیدرآباد سے مجموعی طور پر 9 سائبر جرائم پیشہ افراد کو پولیس نے گرفتار کیا۔ دھوکہ باز ایک ریکٹ چلا رہے تھے جس میں زیادہ منافع یا کم سرمایہ کاری پر منافع کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ملزمان سے کم از کم 17 موبائل فون، 2 لیپ ٹاپ، ڈیبٹ کارڈ اور دیگر ضبط کیے گئے ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ گرفتار ملزمان حیدرآباد، گجرات، ممبئی اور لکھنؤ سے کام کر رہے تھے اور ان کے چین اور دبئی کے مجرموں سے تعلقات تھے۔ کیلاش ستیارتھی لاڈس تلنگانہ پولیس اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے نوبل امن انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی نے ہفتے کو ریاست میں خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کو روکنے میں مثالی کوششوں کے لیے تلنگانہ پولیس کی ستائش کی۔ انہوں نے یہاں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP کے دفتر کا دورہ کیا۔ کارکن نے تلنگانہ پولیس کے عزم اور فرض کے تئیں لگن کا اعتراف کرتے ہوئے ہر متاثرہ کے ساتھ اپنے بچے کی طرح سلوک کرنے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل تحقیقات کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ عادل آباد ضلع میں پین گنگا ندی کے پانی کا بہاؤ 50 فیٹ برج سے ٹکرا گیا۔ تلنگانہ مہاراشٹر کا رابطہ منقطع۔ تلنگانہ میں گزشتہ 5 دنوں سے جاری موسلا دھار بارش کی وجہ سے عادل آباد ضلع کے ندی اور تالاب بہہ رہے ہیں۔ جنت منڈل میں ڈولارا کے مقام پر پین گنگا ندی بہہ رہی ہے۔ پین گنگا کا بہاؤ 50 فیٹ کی بلندی پر واقع برج سے ٹکرا رہا ہے جس کی وجہ سے تلنگانہ مہاراشٹر سرحد پر قومی شاہراہ نمبر 44 پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کم ہونے کے بعد ٹریفک بحال کر دی جائے گی۔ ضلع SP ادے کمار ریڈی نے ڈولارا برج پر پین گنگا کے بہاؤ کا معائنہ کیا اور پولیس اہلکاروں کو کئی ہدایت دی۔ نئے گیسٹ لیکچررز کے تقررات پر روک، پرانے لیکچررز کی خدمات بحال کرنے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گیسٹ لیکچررز کی تائید میں احکامات جاری کیے۔ ہائی کورٹ نے انٹر بورڈ کو احکامات جاری کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ وہ ماضی میں کام کرنے والے 1654 گیسٹ لیکچررز کی تجدید کرے اور نئے تقررات نہ کرے۔ انٹر بورڈ نے 19 جولائی کو نئے گیسٹ لیکچررز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ماضی میں کام کرنے والے 20 گیسٹ لیکچررز نے انٹر بورڈ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور آج ہائی کورٹ نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے کام کرنے والوں کو برطرف کرنا درست نہیں، انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ نئے عمرہ سیزن میں زائرین کو صحت خدمات کی فراہمی کے لیے تیاریاں مکمل۔ سعودی عرب میں مقدس شہروں میں آنے والے مہمانان رب العزت کی طبی امداد کے لیے بہترین انتظامات ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مکہ مکرمہ ہیلتھ کمپلیکس نے کہا ہے کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے مقدس شہر کے تمام اسپتال اور ہیلتھ سینٹرز نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ مکہ مکرمہ ہیلتھ کمپلیکس کا کہنا ہے کہ تمام اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز نے جامع طبی خدمات پیش کرنے کے لیے آپریشنل منصوبے
तैयार कर लिए। वजारत सेहत निगरानी कर रही है। हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने बताया कि मक्के में 10 अस्पताल और 82 हेल्थ सेंटर्स ऑपरेशनल मंसूबों की तैयारियां कर चुके हैं। इमरजेंसी अस्पताल मस्जिद अल हराम के ज़ायरीन को 24 घंटे सेहत खिदमत फराहम करेगा। अलावा मस्जिद अल हराम के दालानों में मौजूद 3 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स भी उम्रा ज़ायरीन को सेहत खिदमत फराहम करेंगे। सेहत इदारे हंगामी हालात से निपटने के लिए जदीद तरीन आलात से लैस हैं। हिमायत सागर के आज मजीद 2 गेट खोल दिए गए। हैदराबाद में जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नजर वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हिमायत सागर के मजीद 2 गेट उठा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी 2 गेट उठाकर पानी खारिज किया था। फिलहाल हिमायत सागर में 1600 क्यूसिक सैलाब का पानी जमा हो रहा है। 4 गेट उठाए जाने से 2750 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी की मौजूदा सतह 1763 फीट पर है। हैदराबाद में शोबा खवातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत में मुहिम। शोबा खवातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत में मुहिम चलाई जा रही है। इस कानून के मुमकिना कदोकाल से अवाम को आगाह किया जा रहा है और इसके मुजम्मिरात पर रोशनी डाली जा रही है। इस जमन में आज यानी 22 जुलाई बरोज़े हफ्ता 3 ता 6 बजे शाम बामुकाम सर सैयद अहमद खान कॉन्फ्रेंस हॉल मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में शहर के मुख्तलिफ जमातों के खवातीन नुमाइंदे, मदारिस और कॉलेजेस के जिम्मेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तेलंगाना के सरकारी हॉस्टलों में पढ़ने वाले तलबा के डाइट चार्जेस में इजाफा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में तमाम किस्म के गुरुकुल स्कूल समेत मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता हॉस्टलों में जेर तालीम गरीब तलबा की फलाह व बहबूद के लिए एक फरकदलाना फैसला लिया। चीफ मिनिस्टर ने हॉस्टलों में मेयारी खाना और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए गुरुकुल स्कूल के तलबा के डाइट चार्जेस में इजाफा करते हुए फाइल पर दस्तखत किए। डाइट चार्जेस के बढ़े हुए चार्जेस जुलाई से लागू होंगे। तीसरी से 7वीं जमात तक पढ़ने वाले तलबा के डाइट चार्जेस 950 रुपए माहाना से बढ़कर 1200 रुपए हो गए। 8वीं से 10वीं जमात तक पढ़ने वाले तलबा के लिए मौजूदा माहाना डाइट चार्जेस 1100 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिए गए। आरमूर में 2 बहनों के कत्ल में मुलविस मुलजिम को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरमूर में 2 मुअम्मिर बहनों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर देने की वारदात पेश आई थी, जहां नामालूम अफराद ने 2 बहनों पर इस वक्त हमला करके कत्ल कर दिया था जब वो सो रहे थे। पुलिस ने वारदात के अंदरून 48 घंटे मुलजिम को तलाश करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। यूट्यूब वीडियो देखने के बाद कम उम्र लड़के ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना का वाकया। एक कम उम्र लड़के ने यूट्यूब देखते हुए खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिला राजना सिरसिलाम में पेश आया। एल्लारेड्डीपेट के एक तांडा के रहने वाले कम उम्र लड़के उदय ने काफी देर तक यूट्यूब पर वीडियोस देखे और इसके बाद वो अचानक कमरे में गया और इसने फांसी ले ली। लड़के की मां संगीता ने देखा कि इसका बेटा काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला, तो इसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा तो लड़का फांसी से लटका हुआ था। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मायने के बाद मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने हैदराबाद में बैन रियासती मंशियात सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। एलबी नगर की स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी ने चेतनियापुरी पुलिस के साथ मिलकर एक बैन रियासती मंशियात की सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और हैदराबाद में एक मंशियात फरोश से 15 लाख रुपए की मंशियात जब्त की। ये बात रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक हुई। मुलजिम की शनाख्त रमेश कुमार के बतौर की गई है। पुलिस ने बताया कि एक और मुलजिम जिसकी शनाख्त चिन्ना राम के नाम से हुई है, वो अभी तक मफरूर है। पुलिस ने इसके कब्जे से दर्ज झेल अशिया जब्त की, जैसे पॉप्स स्ट्रॉ ड्रग 2.2 किलोग्राम, पॉप्स स्ट्रॉ ड्रग पाउडर 2 किलोग्राम, एक मोटरसाइकिल और नेट कैश 1700 रुपये, एक वजनी मशीन, एक मिक्सर ग्राइंडर और तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत के 2 मोबाइल फोन। तेलंगाना में अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने के सरकारी अहकामात जारी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबकात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत के अक़लियतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। रास्ते तौर पर अक़लियतों के दरख्वास्त गुजार को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस स्कीम का जियो जारी कर दिया गया। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में खर्च के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। टमाटर की चोरी। तेलंगाना के जहीराबाद में वाकया।
मुल्क में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ, वहीं इसकी चोरी के वाकयात भी बढ़ गए हैं। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में इसी तरह का वाकया पेश आया। जहीराबाद का एक किसान टमाटर बेचने के लिए सब्जी मंडी पहुंचा। जुम्मे की रात वो टमाटर की ट्रे दुकान में छोड़कर चला गया। सुबह जब वो दुकान वापस आया तो इसकी दुकान से टमाटर की 3 ट्रे का सरका कर लिया गया है, जिसकी मालियत 6,500 रुपये बताई गई है। किसान ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जब जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि एक शख्स जो हेलमेट पहना हुआ था, इसने टमाटर की चोरी की है। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई अजला में तबाहकुन बारिश, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। रियासत गुजरात के चंद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने रियासत में बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां इतवार की सुबह 6 बजे खत्म होने वाले 24 घंटे की मुद्दत में 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शदीद पानी जमा होने और सैलाब के बायस कानें एक दूसरे पर ढेर हो गईं और गाड़ियां और मवेशियां बह गई। हुकाम ने बताया कि हफ्ते को गुजरात में सैलाब की वजह से 2 कौमी शाहराहें, 10 रियासती शाहराहें और 300 देही सड़कें बंद कर दी गई थी और जहां पानी कम हो गया था, वहां ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई। बरतानिया वीजा लॉटरी के तहत हासिल करने का सुनहरी मौका। Z3 ओवरसीज चाली बंडे की जानिब से उम्मीदवारों की मुफ्त रहनुमाई और मदद करने का ऐलान। ओवरसीज चाली बंडे की जानिब से बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए यंग प्रोफेशनल वीजा स्कीम की मुफ्त रहनुमाई का आगाज किया है। जनाब अली खान डायरेक्टर ने बताया कि हुकूमत बरतानिया की जानिब से दूसरे मरहले में यंग प्रोफेशनल वीजा स्कीम के तहत लॉटरी सिस्टम के जरिए वीजे फराहम किए जा रहे हैं। 25 जुलाई से 27 जुलाई के दरमियान इस सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। उम्मीदवार खुद अपना वीजा फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। एहलियत के तहत 18 बरस से 30 बरस उम्र, ग्रेजुएशन कामयाब होना जरूरी है। लॉटरी के तहत 2 साल का बरतानिया का वीजा दिया जा रहा है। हर अहल नौजवान इसमें किस्मत आजमाई कर सकते हैं। जो लोग खुद दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सकते, इन्हें Z3 ओवरसीज पर फॉर्म दाखिल करने काउंसलर्स के जरिए मुफ्त रहनुमाई और मदद की जाएगी। मजीद मालूमात के लिए फोन नंबर 9985601909 या 7680021909 पर राब्ता किया जा सकता है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने तेलंगाना कांग्रेस का फैसला, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने 15 अगस्त को अक़लियतों और पिछड़े तबक़ात का भारी जलसा मुनक़िद करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का अजलास तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की सदारत में मुनक़िद हुआ। कई घंटों तक जारी रहने वाले अजलास में अहम फैसले लिए गए। अजलास के अख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मधुया शकीक गौड़ और इंजन कुमार यादव के साथ मिलकर बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और दीगर तबकात के लिए भी अलहदा डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए दानिश्वरों और माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। महकमा रेवेन्यू में VRA के सिस्टम को बर्खास्त करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा रेवेन्यू में काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के निजाम को खत्म करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक़िदा अजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि VRA के सिस्टम को बर्खास्त कर दिया जाएगा और VRA के तौर पर काम करने वाले अफराद को इनकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से 4 महकमा यानी पंचायत राज, बल्दिया, आपाशी और मिशन भागीरथता में पोस्टिंग देने का फैसला किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए 30% PRC नाफिज करने का फैसला किया है, जिससे वाटर बोर्ड के तकरीबन 4000 मुलाजिमीन मुस्तफिद होंगे। इस मौके पर मेट्रो वाटर वर्सेस यूनियन के सदर जीराम बाबू यादव और यूनियन लीडरों ने प्रगति भवन में CM KCR से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा किया।